Hello friends, once again welcome to my YouTube channel The Capture and continuing the series on state life insurance scheme. Today it will be our sixth part of that series. As we know that we already have discussed the five parts of this scheme and today it's now sixth part. Sixth parts will consist or will include rule number 19 of SLI and onwards. So let's begin with rule number 19, which reads as under: nominee or nominees failing, nominees beneficiary recognized. It means that a applicant or an applicant, while submitting his application for allotment of SLI policy, he has also mentioned his nominees, failing on which the benefit of the policy in case he doesn't survive till the age of maturity or till the age of retirement, all the benefits of the policy will be disbursed according to the Succession Certificate Act of 1977. There will be free choice to a applicant or an insured to change his nominee whenever he desires during the year. For that, he has to write down the declaration on insurance certificate, or we can say policy bond, and also a separate copy duly signed by him and witnessed by at least two persons, that he has to submit to concerned district fund office for approval or authentication. सिंपल सा मतलब है कि जो रूल नंबर 19 है वो डील करता है नॉमिनीज़, रिगार्डिंग नॉमिनी, अबाउट नॉमिनी। एक इंश्योर्ड को जो है वाइल अप्लाइंग फॉर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको जो है अपने नॉमिनीज़ भी मेंशन करने हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो और इन केस इन फ्यूचर उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि जितने भी बेनिफिट्स होंगे एसएलआई पॉलिसी के, वो अकॉर्डिंग टू जो सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्ट ऑफ 1977 का है उसके मुताबिक वो डिसबर्स होंगे उसके बेनिफिट्स। अगर इंश्योर्ड चाहेगा तो वो अपने नॉमिनी चेंज भी कर सकता है। उसके लिए उसको जो है सिंपली जो है अपने पॉलिसी बॉन्ड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट पर एक डिक्लेरेशन देनी है और साथ में एक सेपरेट पेपर पर भी डिक्लेरेशन राइट डाउन करनी है और खुद साइन करने हैं, और साथ में एटलीस्ट 2 पर्सन जो हैं वो विटनेस भी होने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो उसको कंसर्न फंड डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस में सबमिट करनी है फॉर फर्दर अथेंटिकेशन और अप्रूवल के लिए। तो ये रहा कुल मिला के रूल नंबर 19 that deals about nominees. Now we will discuss next rule, that is rule number 20. Rule number 20 is very simple rule. It reads as: all the premium will fall due on first day of the calendar month. So simple, means you have to pay your premium on first day of the calendar month or any date of the calendar month. So simple, बहुत सिंपल है कि जो प्रीमियम है आपकी पॉलिसी के वो ड्यू हो जाते हैं फर्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ के। तो आपको अकॉर्डिंग टू अपनी रिस्क डेट और कमेंसमेंट डेट के हिसाब से जो आपको इंटीमेट की है, आपने उस डेट से पहले या फर्स्ट डे ऑफ द दैट मंथ वो प्रीमियम पे करना है। नाउ नेक्स्ट रूल इज़ रूल नंबर 21. Rule number 21 states: premium during leave or suspension, etc. It means that whenever an employee is on leave or is suspended and is not getting any salary or pay,
or allowance, suspension allowance, he is not bound to pay his premium towards SLI policy. Means there arises no arrear for that period on which he is leave or is under suspension, etc., etc. However, in any other circumstances where he is getting his salary or pay, he has to pay his arrear on account of unpaid SLI premium along with simple interest of 5% per annum. इन हिंदी और इन इंग्लिश इसका मतलब ये है कि जब एक इंश्योर्ड जो है लीव पर चला जाता है, छुट्टी पर चला जाता है, या उसको सस्पेंशन में है, अंडर सस्पेंशन है, और उसको कोई सैलरी नहीं मिल रही, विदाउट सैलरी है, विदाउट सस्पेंशन अलाउंस है, तो उस केस में उसके कोई एरियर्स जो है ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम, पेंडिंग प्रीमियम अराइज नहीं होते हैं, उसको पे नहीं करने हैं। इन केस अगर कोई दूसरा अदर सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें वो छुट्टी पर है और या जो है लीव पर है या अंडर सस्पेंशन है, लेकिन उसको सैलरी मिल रही है, उसको पे मिल रही है, तो फिर इस प्रीमियम के जो हैं, इसके प्रीमियम के जो हैं वो एरियर्स अराइज होते हैं जो उसको पे करने हैं, रिकवर करने हैं उससे, अलॉन्ग विद simple interest of 5%. Now next is a very important rule, that is rule number 22, which reads as under: paid up insurance if employment ceases before the age of 60 years. Paid up insurance if employment ceases before the age of 60 years. In detail, if a government servant resigns, resignates, voluntarily retires, or is removed, dismissed, or discharged from the government services, if he desires, in that situation, if he desires, he can continue his SLI policy by remitting his due premium on due date at treasury concerned in concurrence with the chief accounts officer district fund office concerned. कहने का मतलब ये है कि अगर एक एम्प्लॉई जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, वो रिज़ाइन कर देता है अपनी रिटायरमेंट होने से पहले, तो उस केस में उसकी पॉलिसी का क्या होगा? उस केस में उसकी पॉलिसी कंटिन्यू रह सकती है। इन केस अगर वो चाहेगा तो उसके लिए उसको क्या करना होगा कि अपने जो ड्यू प्रीमियम होंगे उसको मंथली वो अपनी ट्रेजरी कंसर्न में जाकर जो है रेमिटेंस करेगा, बट इन कॉन्करेंस विथ चीफ अकाउंट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस कंसर्न। उसके लिए आपको जो है चीफ अकाउंट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस कंसर्न की कॉन्फ्रेंस भी लेनी है और जो ट्रेजरी अफसर है उससे भी बात करनी है, तो वहाँ पर वो पे करता रहेगा और जब मैच्योरिटी हो जाएगी तब वो अपने पूरे बेनिफिट्स ले सकता है। इन केस ही डिसाइड्स अदरवाइज देन ही विल बी पेड, then he will be getting only paid up assurance, that is reduced paid up assurance. अगर वो नहीं चाहता, नहीं रेमिटेंस करता है ट्रेजरी में, तो फिर उसको जो है उसको पेड अप इंश्योरेंस मिलेगा। वो कम करके उसका सम इश्योर जो है उसका कम करके, वो उसका एक फार्मूला है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो कम करके उसका जो बेनिफिट्स बनेगा वो उसको मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है कि पेड अप इंश्योरेंस के लिए जो है अवेल करने के लिए आपके कम से कम उसके जो है 4 मंथली प्रीमियम्स जो है क्रेडिट होने चाहिए उसके SLI अकाउंट में। अगर ऐसा नहीं है
तो देन फिर पेड अप एश्योरेंस भी उसको नहीं मिल सकता है। पेड अप एश्योरेंस के लिए भी आपको जो है एटलीस्ट देयर शैल बी 4 मंथली प्रीमियम्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ पेड अप इंश्योरेंस। Here is an important note to be kept in mind. That is, if a person not in active government service, if a person not in a active government service chooses this option, means he chooses to kept his policy alive by submitting or remitting his premium to concerned treasury office or in treasury office, but he fails to kept his policy alive for at least 5 years, then it will be the discretionary power of the Chief Accounts Officer, District Fund Office concerned, who will decide that benefits will be given, paid up insurance will be given to that insurance or not. It will be discretionary power of the concerned Chief Accounts Officer, District Fund Office to do. He will lose all the rights, all the benefits of his policy in that case. If he decides to keep his policy alive but fails to keep his policy alive for at least 5 years from that date. फिर से मैं इसको रिपीट करूँगा इन हिंदी और उर्दू में। एक इंश्योर जो है, एक जो एम्प्लॉई है वो एलिजिबल होता है पेड अप इंश्योरेंस को तब जब उसने कम से कम 4 प्रीमियम जो है जमा किए हों, डिपॉज़िट किए हों अपने SLI अकाउंट में। और एक और बहुत ज़रूरी बात जो है, नोट वो दिमाग में रखने की बात है, याद रखने की बात है, वो ये है कि अगर एक नॉन एक्टिव एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट सर्विस में एक्टिव नहीं है, वो चूज़ करता है कि मैं अपनी पॉलिसी को अलाइव रखूँगा, कैसे रखेगा? बाय रेमिटिंग हिज प्रीमियम टू कंसर्न ट्रेजरी और डिपॉजिटिंग इन कंसर्न ट्रेजरी, कि मैं अपनी जो है प्रीमियम अपनी ट्रेजरी में डिपॉजिट करता रहूँगा ऑन ड्यू डेट्स पर। और वो वहाँ से डिसमिस्ड है, रिमूव्ड है या डिस्चार्ज है या वॉलंटरी रिज़ाइन किया हुआ है उसने, तो वहाँ पर वो कर रहा है। लेकिन वो फेल हो जाता है कि अपनी पॉलिसी को जो है 5 साल तक वो नहीं चला सकता इन दैट सिचुएशंस। तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि वो अपने सारे राइट्स जो हैं पॉलिसी के वो लूज़ कर जाएगा, उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल सकता है। और ये डिस्क्रिमिनेटरी पावर जो है वो जो है सारी होगी किस पर? ये अप टू होगा चीफ अकाउंट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस डोला, हु विल डिसाइड वेदर बेनिफिट शुड बी अलाउड इन हिज और हर फेवर और नॉट। तो ये सारा जो है पावर्स फिर चली जाती हैं कंसर्न चीफ अकाउंट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस टोडा को इस केस में कि बेनिफिट्स जो हैं वो अलाउ करने हैं या नहीं करने हैं। तो फ्रेंड्स और डियर व्यूवर्स, तो आज हमने जो है ये पार्ट 6 जो है कंप्लीट कर दिया। इसमें जो है हमने रूल नंबर 19 से लेकर रूल नंबर 22 तक हमने इसमें पढ़े, इन डिटेल में पढ़े, बहुत ही लैंग्वेज में पढ़े, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी पढ़ा, थोड़ा बहुत हिंदी उर्दू में भी पढ़ा। एंड आई होप दैट आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा, पहुंचा होगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी कि मेरे इस थोड़े से एफ़र्ट से आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा। अगर कहीं कोई कुछ कमी रह रही है तो मैं इन फ्यूचर वो भी दूर करने की कोशिश करूँगा और एक अच्छा सा जो है कंटेंट, एक अच्छा सा वेल कम्पैक्ट जो है और वेल अंडरस्टूड जो है मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो इसके साथ ही मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू सून अगेन। थैंक्स वंस अगेन।